تیمور، میرا بچہ! بیجان نے خوش ہو کر اپنی باہیں پھیلائی تھیں، لیکن تیمور شاہ کے چہرے پر سرد مہر تھی۔ آج اتنے سالوں بعد بڑے پوتے کو دیکھ کر وہ خوشی سے نہال تھی۔ مجھے یقین تھا میرے بچے تم ضرور آؤ گے میری نایاب کو لینے۔ اسے تمہارے ساتھ رخصت کر کے میں بھی سکون سے مر سکوں گی۔ ان کی آنکھیں آب دیدہ ہو گئی تھیں، جبکہ تیمور بے تاثر لہجے میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر دو ٹوک لہجے میں کہنے لگا، ایک بات میں پہلے ہی کلیئر کر دوں بیجان، میں یہاں کسی پرانے رشتے کو نام دینے یا پھر اس تعلق کو جوڑنے نہیں آیا۔ یہ رشتہ پہلے بھی مجھ پر بوجھ تھا اور آج بھی میرے دل پہ رکھا ایک بھاری وزن ہے، اور میں اس بوجھ سے جان چھڑانے آیا ہوں۔ ستون ناک نقشہ چہرہ لیے منفرد تاثرات وہ کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ بیجان اس کی بات پر حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا بچے؟ میں سمجھی نہیں۔ ان کا دل جیسے ہی کسی نے مٹھی میں لے کر مچل دیا ہو، تیمور سپاٹ لہجے میں کہنے لگا، مطلب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں بیجان، میں یہاں آپ کی نواسی نایاب فاطمہ کو طلاق دینے آیا ہوں، کیونکہ بچپن میں کیے گئے اس نکاح کو میں نہیں مانتا۔ میں نے جو ہر فیصلہ اپنی زندگی کا ہر قدم اپنے دل و دماغ کی مرضی سے اٹھایا ہے، تو میں اپنی زندگی کا اتنا اہم فیصلہ دوسروں کی مرضی پر سر جھکا کر کیسے مان لوں؟ اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ امید ہے کہ آپ میرے جذبات کو سمجھیں گی۔ جس طرح نایاب آپ کی لاڈلی نواسی ہے، اسی طرح میں بھی آپ کا پوتا ہوں۔ آپ کو صرف اس کی خوشیاں عزیز نہیں ہونی چاہیے، میرے دل کی خوشی کا بھی خیال رکھنا آپ کا فرض ہے، وہ مضبوط لہجے میں کہتا۔ بیجان کی آنکھوں میں نمی کا باعث بن گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ میں تمہارے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتی۔ نایاب کا کیا ہے، اللہ نے چاہا تو جلد ہی اس کے لیے بھی کوئی آسان راستہ نکال لے گا۔ میں تمہیں برا بھلا نہیں کہوں گی تیمور، شاید میں نے جذبات میں آ کر یہ غلط فیصلہ کیا، جس کا خمیازہ آج میری بچی کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں صاف کی تھی، لیکن تیمور کے سرد تاثرات پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ٹھیک ہے پھر، میں ڈیورس پیپر پر جلد بھیج دوں گا۔ یہ آپ کو پہلے آگاہ کرنا چاہتا تھا، تاکہ آپ کے دل میں میری طرف سے کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو۔ بیجان اس کے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا تھا، جسے بیجان نے نرمی سے ایک جھٹکے سے چھڑوا لیا تھا۔ پھر وہ اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، تم اتنی دور دوسرے شہر سے آئے ہو، میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گی، کھانا کھا کر جانا۔ تیمور حیرت سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ اتنی بڑی بات ہونے کے باوجود ان کے چہرے پر، ان کی آنکھوں میں اپنے اس سب سے لاڈلے پوتے کے لیے صرف محبت کا سمندر تھا۔ تیمور جلد سے جلد وہاں سے چلے جانا چاہتا تھا۔ بیجان کے یوں کہنے پر وہ انہیں اپنے کام کے بارے میں بتانے لگا کہ نہیں بیجان، پہلے ہی بڑی مشکل سے میں وقت نکال کر یہاں پر آیا ہوں، میرے پاس کھانے کا وقت نہیں ہے۔ لیکن بیجان اس کی طرف مڑ کر دیکھنے لگی کہ اتنے عرصے کے بعد آئے ہو، کیا تمہیں اپنی دادی سے اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ ان کے پاس کچھ پل بتانا بھی تمہارے لیے محال ہے؟ بچپن میں میرے ہاتھوں میں کھیل کر ہی بڑے ہوئے ہو، میں کوئی تمہاری دشمن تو نہیں ہوں۔ تیمور ان کے الفاظ سن کر چپ ہوا تھا۔ یہ بات تو وہ بھی جانتا تھا کہ بیجان اس سے کتنی محبت کرتی تھی، لیکن جو فیصلہ نکاح کے روپ میں اس کے لیے کر چکی تھی، وہ اس کے بعد سے اس کے دل میں بیجان کے لیے وہ مقام نہیں رہا تھا، اور انہیں اپنی خوشیوں کا دشمن سمجھنے لگا تھا۔ آج سے 10 سال پہلے انہوں نے بیٹی کے مرنے کے بعد اپنی مری ہوئی بیٹی کی نشانی نایاب فاطمہ کا نکاح بچپن میں ہی اپنے اس پوتے تیمور شاہ کے ساتھ کر دیا تھا۔ کم عمری اور لڑکپن کی وجہ سے پہلے تو تیمور کو اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے وہ جوان ہوتا گیا، تب سے اسے اس رشتے سے نفرت سی ہو گئی۔ جب سب لوگوں نے اسے احساس دلانا شروع کیا کہ وہ لڑکی جو صرف میٹرک پاس اور یتیم مسکین ہے، وہ تمہاری قسمت کا ستارہ بن گئی ہے، جو کسی طور پر بھی تمہارے لیے قابل قبول نہیں، اس کے پاس کے لوگوں نے اسے احساس دلانا شروع کیا، تو نایاب فاطمہ کو بن دیکھے ہی اسے چڑ سی ہونے لگی۔ آج جب اس نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد
अपने बाबा का बिजनेस मुकम्मल तौर पर संभाल लिया था। सिर्फ चंद सालों में ही वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया था। तो फिर वो इतनी मामूली सी लड़की को कैसे अपनी जिंदगी में ले आता। अपने इर्द गिर्द जब लड़कियों को घूमते देखता जो बार बार उसे लिफ्ट करवाने की कोशिश किया करती, वहीं उसकी माँ जो कभी किसी लड़की के बारे में तो कभी किसी अमीर कबीर बाप की बेटी को उसके सामने लाकर खड़ा कर देती, बार बार उसे ये कहती ये लड़कियां तुम्हारे काबिल हैं, जो खुद बिजनेस वुमेन है, तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी, ना कि वो जाहिल गंवार लड़की जिसने बमुश्किल मैट्रिक के पास किया है। और फिर गाँव की वो लड़की जानते भी हो कैसी होती है, वो विधि सी पुरानी सलवार कमीज पहने जो कि 8-8 दिन ना तो नहाती हैं और ना ही कपड़े उतारती हैं। फिर वो बालों में लगा चंबेली सरसों का तेल, वो चुटिया बांधे। बताओ भला तुम जैसे हैंडसम लड़के के साथ क्या ऐसी लड़की जचेगी। अपनी माँ के मुंह से ये बातें सुनकर तैमूर की उकताहट सी होने लगती थी। भला वो कहाँ ऐसी लड़की के साथ मैच करता था। वो तो आकर कहीं बिजनेसमैन पार्टी में अपनी बीवी को लेकर जाता तो उल्टा वो उसे शर्मसारी करवाती। घर वाले भी उस पर शादी का दबाव डाल रहे थे, जबकि बीजान नायाब की खातिर उन सबसे ताल्लुक तोड़कर सिर्फ अपनी नवासी के साथ रह रही थी, क्योंकि वो उससे अपनी बीजान से भी ज्यादा मोहब्बत करती थी। तैमूर आज एक अहम फैसला लेकर यहाँ आया था। न जाने कितने सालों बाद बीजान के बेहद इसरार पर वो रात के खाने के लिए रुक गया था। इस घर में नायाब और बीजान के अलावा ऊपर किराएदार भी आ पाते। थोड़ी देर बाद गुलाबी दुपट्टे में मलबूस कोई अंदर आया था। बीजान, मैंने खाना तैयार कर लिया है, आप कहें तो मैं टेबल पर लगा दूं। कितनी नाजुक, बहुत ही सुरीली आवाज थी उसकी। तैमूर उसके सामने खड़ी अलसुपरा को देखता देखता रह गया। वो जैसे कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहा। सफेद गुलाबी रंगत, नाजुक सी जैसे कोई गुलाब की डाल, सादा ब्लैक चप्पल, सलीके से दुपट्टा सर को लिए, वो हुस्न का दिलकश मजमुआ थी। अपनी जिंदगी में इतना सादगी से ढका छुपा हुस्न उसने नहीं देखा था। तभी तो वो पलके भी ना चिपक सका था। उसे भी शायद तैमूर की निगाहों की शिद्दत का एहसास हुआ था। तभी भी जान, जिनकी आंखों में नमी की साफ चमक थी, वो नर्म लहजे में कहने लगी, हाँ मेरी बच्ची, खाना लगा दो। वो बहुत दूर से सफर करके आया है मेरा तैमूर, वो भी इतने सालों बाद। उनकी बात पर वो सर हिलाती तेजी से पलट गई थी, किसी तेज खुशबूदार हवा के झोंके की तरह, और तैमूर उस खुशबू को महसूस करता रह गया। चंद लम्हे गुजरे थे जब वो बीजान से कहने लगा, ये कौन है। बीजान हैरत से उसके सवाल पर गौर करते हुए बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हुई। अचानक ही उनके जहन को झटका सा लगा था। तकरीबन 8 साल हो गए थे तैमूर ने उसे देखा था, और ना ही उसने तैमूर को, तो ऐसे में उसका न पहचाना इतना हैरतअंगेज भी नहीं था। तभी बीजान कहने लगी, यही है वो कम नसीब, यतीमी का सितम उठाए, माथे पर माँ बाप की बदनाम मोहब्बत का कलंक सजाए। अब एक और दाग उसके दामन पे सज जाएगा, वो भी तलाक का। तैमूर बेकरार सा हो गया। उसने आज से पहले ऐसा पाकीज़ा हुस्न कभी नहीं देखा था। वो तो दम बखुद रह गया था कि ये नायाब है, वो जो घर से ऐसा तासुर लेकर आया था कि नायाब है, कम सूरत, कम पढ़ी लिखी होगी, मामूली सी लड़की होगी, ये तो उसके बिल्कुल उलट हुआ था। उसका दिल बेचैन सा हो गया। उसे इतना खामोश देखकर बीजान कहने लगी, और तुम्हारे माँ बाप ठीक हैं। तुम्हारे बाप तो आया था मिलने मुझसे कुछ महीने पहले, लेकिन तुम बच्चों ने तो अपनी शक्ल दिखाना ही छोड़ दी। वो अभी तक अफसुर्दा थी। तैमूर के जहन पर एक धुंध सी छाई हुई थी। वो फैसला जो बहुत बड़ा था, अब उसके दिल में अजीब सी हलचल मची गई थी। थोड़ी देर तक वो बीजान से बातचीत करता रहा, लेकिन उस दौरान भी उसकी निगाहें दरवाजे से बाहर थी। वो जो अपनी एक झलक दिखाकर दोबारा पलट कर कमरे में नहीं आई थी, न जाने कहाँ गायब हो गई थी। लेकिन ठीक आधे घंटे बाद ही वो अपना गुलाबी आंचल लहराती फिर से बीजान को कान में सरगोशी करते हुए कहने लगी, मैंने खाना लगा दिया है। उसकी बारीक आवाज पर तैमूर के लब मुस्कुरा दिए थे। तो ये है नायाब फातिमा। उसका दिल अजीब अंदाज में धड़कने लगा। उसने इतने सालों बाद पहली बार उस नाजुक गुलाब जैसी लड़की को देखा था। नायाब उसकी
और हिदत निगाहें अपने वजूद पर महसूस करती दोबारा पलट गई थी। फिर भी जान उसे खाने की टेबल पर ले आई। यहाँ पर भी नायाब गायब थी, जबकि वो अकेला भी जान के पास बैठा खाना खा रहा था। उसका इरादा था रात को ही निकलेगा, लेकिन अब उसे ये फैसला बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। जान अंदर से बेहद दुखी थी। वो ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि उनके मरने के बाद नायाब का क्या होगा। वो जो एक आखिरी सहारा थी, वो भी दम तोड़ गया था। तैमूर आज बहुत बड़ा फैसला लेकर यहाँ आया था। उनके पास जिस तरह नायाब उनकी लाडली नवासी थी, वो भी लाडला पोता था। गो के उन्होंने जोर जबरदस्ती अपने बेटे से मनवा कर बचपन में ही उन दोनों का निकाह करवा दिया, लेकिन नहीं जानती थी कि इस जबरदस्ती के रिश्ते का आज ही अंजाम क्या होगा। तभी तो तैमूर नायाब को तलाक देने का फैसला किया था, लेकिन अब वो बहुत खामोश बैठा था। कहो तो चाय बनवा दूं? जान ने उसे यूं चुप बैठे देखा तो नरमी से पूछने लगी। वो फौरन ही सर हिलाकर कहने लगा, जी जी क्यों नहीं। दिल तो बेचैन हो रहा था। उस नाजुक परी की एक झलक दोबारा देखने के लिए वो हैरान भी हुआ। वो उसकी मुनकुआ थी, वो भी बचपन की। ऐसे में अगर वो उसे चोरी छुपे देख भी रहा था तो ये उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं था। अब के जब वो उसे तलाक देने का फैसला कर चुका था, इस फैसले के बाद उसका दिल किसी तौर पर भी राजी नहीं हो रहा था कि उस लड़की को घर में छोड़कर जाए। उसकी मुतलाशी निगाहें मुसलसल नायाब को तलाश कर रही थी, जो कोने से निकल कर न जाने कहाँ से किचन में चली जाती और किचन से निकलकर दोबारा कोने में जाकर गायब हो जाती। इतनी देर में बस वो उसे एक दो झलक ही देख पाया था। थोड़ी देर बाद वो सब्ज पत्ती वाली चाय बनाकर दोबारा कमरे से गायब हो गई थी, जबकि वो उसकी बनाई हुई चाय होंठों से लगाए न जाने क्या सोचकर मुस्कुरा रहा था। बीजान कहने लगी, मैं नमाज पढ़ लूँ बेटा, फिर तुमसे बातचीत करती हूँ। वो जान गई थी कि आज रात तैमूर के जाने का इरादा नहीं, वो सुबह ही निकलेगा। न जाने क्यों जाए नमाज पर खड़े होकर उनके वो आंसू टपक मुसल्ले पर गिरे थे। क्या होता अगर तैमूर कोई दूसरा फैसला लेकर इस घर में आता और यह कह देता कि मैं नायाब को रुखसत करवाने के लिए आया हूँ। उसकी माँ फायका बेगम, जो बीजान और उसकी नवासी से सख्त नफरत करती थी, यही वजह थी कि वो इतने सालों से अपने पोते पोतियों से दूर, अपने सगे बेटे से दूर इसी शहर में आबाद थी। इस घर में जहाँ उसकी बेटी अपने दामाद और एक नन्ही सी नाजुक परी के साथ रहती थी। उनका बेटा जहांगीर शाह, जो बीजान की बेटी नादिश से सख्त नफरत करते। वजह यह थी कि नादिश के घर से भागकर शादी की थी, मोहब्बत की, वो भी मुजतबा अहमद से, जो उनकी जात पात से बिल्कुल अलग था। लेकिन जिस तरह नादिश के घर वाले इस रिश्ते पर रजामंद नहीं थे, इसी तरह मुजतबा के भी यही वजह थी कि दोनों के घर वालों ने उन्हें अपने अपने घरों से निकाल कर बेदखल कर दिया था। अब वो एक किराए के मकान में रह रहे थे, लेकिन किस्मत ने मुजतबा अहमद का ऐसा साथ दिया कि उनकी नाजिश से शादी होते ही सरकारी नौकरी लग गई थी। यही वजह थी कि वो उनकी जिंदगी में खुश नसीब साबित हुई थी। जैसे ही उनकी अच्छी जगह पर नौकरी लगी, वो दोनों इस अच्छे शहर में बस गए। यहीं पर उन्होंने अपना घर खरीद लिया और शादी के 7 साल बाद उनके यहाँ नायाब ने जन्म लिया। वो उनकी सबसे पहली और इकलौती औलाद थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये बच्ची आजमाइशों से भरी हुई जिंदगी लेकर इस दुनिया में आई है। जब एक पिकिंग पॉइंट पर जाते हुए कार एक्सीडेंट में उन दोनों की मौत हो गई थी, लेकिन खुशकिस्मती से एक्सीडेंट के वक्त नाजिश ने नायाब को अपने बाजू में दबोच लिया था। सब कह रहे थे कि ये एक मौजज़ा ही है, इस बच्ची का बच जाना। लेकिन दूसरी तरफ अपनी जान का दिल तड़प गया था जब अपनी बेटी और दामाद की मौत की खबर सुनी। इतने सालों से उनका नाजिश से कोई रास्ता नहीं था। वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई थी, जबकि जहांगीर शाह के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। ऐसी बेटियों को तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए, जो घर वालों की बदनामी का बाइस बनती हैं। लेकिन खैर, बहन को कंधा तो देना ही था। नाजिश और मुजतबा अहमद अपनी बेटी के लिए एक घर छोड़ गए थे। जब बीजान ने इस नन्ही सी मासूम फरिश्ते जैसी बच्ची को देखा तो फौरन ही उसे अपने बाजू में ले लिया। लेकिन जहांगीर शाह ने गुस्से से इन्हें समझाया कि इस बच्ची को किसी यतीम खाने में छोड़ देते हैं, क्योंकि ये हमारी नस्ल से नहीं। लेकिन उसका दिल तड़प गया कि उनकी बेटी नाजिश की निशानी है और वह उन्हें हरगिज छोड़कर नहीं जाएंगी। फाइका बेगम गुस्से से कह रही थी, इस बदजात लड़की को मैं अपने घर क्यों लेकर जाऊंगी। बीजान को अपनी नखरे वाली बहू की बात इतनी बुरी लगी
कि उन्होंने हमेशा के लिए अपनी नवासी को पालने का फैसला किया, क्योंकि माँ बाप के मरने के बाद वो बिल्कुल तन्हा होकर रह गई थी, और वो थी भी सिर्फ 2 साल की थी। ऐसे में बीजान ने उसे अपनी औलाद की तरह पाला था। ऐसे लगता था जैसे वो नादिश की दूसरी तस्वीरों फायका बेगम और बीजान की शुरू से ही आपस में नहीं बनती थी। यही वजह थी कि अब घर में लड़ाई झगड़े बंद हो गए थे। तो जहांगीर शाह ने भी सुखा सांस लिया, लेकिन जब भी वो माँ से मिलने आते तो उन्हें समझाते उस लड़की को मुतबा के घर वालों के हवाले करें और आप मेरे साथ चले। लेकिन बीजा ने साफ इनकार कर दिया था। क्यों आप मुझ पर गुनाहों का बोझ लादना चाहती हैं माँ ने? आप मेरी मैं आपको कैसे तनहा इस अकेले शहर में छोड़ दूं? बीजा ने उन्हें आस भरी नजरों से देखा था। मैं तुम्हें हर बात के लिए माफ कर दूंगी, अगर तुम मेरी एक बात मानोगे। तो जहांगीर शाह हैरान रह गए थे। कौन सी बात अम्मा? उन्होंने सर झुकाया, फिर कहने लगी, नायाब 10 साल की हो गई है, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मुझे यकीन है जब मैं मर जाऊंगी तो तुम और फाइका से यतीम खाने छोड़ दोगे। अगर तुम मेरे जीते जी मेरे सामने इसे एक मजबूत रिश्ते में बांध दो तो मैं तुम्हारी हर कोताही हर गलती को माफ कर दूंगी। जहांगीर बीजान ने अचानक उसके सामने हाथ जोड़े थे तो वह हैरान रह गए। कैसी बातें कर रही हैं? वैसे भी आपसे दूरी मुझे सुख का सांस नहीं लेने दे रही। ये सुनकर बीजान ने उन्हें अपना फैसला सुनाया तो वो सोच में पड़ गए। फाइका बेगम कभी इस बात पर राजी नहीं होगी। अभी उनका बेटा सिर्फ 17-18 साल का है और इतनी जल्दी उसका निकाह, जबकि वो अभी कॉलेज में पढ़ रहा था, फर्स्ट ईयर में। लेकिन तैमूर शाह उनकी भी औलाद है, उनका भी हक बनता है कि उसके बारे में कोई फैसला कर सके। उन्होंने बीजान को तसल्ली दी थी कि उन्हें बीजान की बात पर कोई एतराज नहीं है। सुनकर तो वो खुशी से झूम उठी थी। फिर एक पुरवकार महफिल में इस कम उम्र जोड़े का निकाह हो गया था। वो के फायका बेगम गुस्से से तिलमिला रही थी। दिल ही दिल में वो बीजान से बदला लेने का सोच रही थी, लेकिन अभी ना ही वक्त था और ना ही मौका, इसलिए चुप रहने में ही आफियत समझी। लेकिन उनकी नफरत अंगेज निगाहें उस सफेद चेहरे वाली लड़की की तरफ थी जो सिर्फ 10 साल की थी, लेकिन अभी से उसकी उठान बता रही थी कि ये जवान होने के बाद क्या कयामत आने वाली है। उसे तैमूर से दूर रखना ही बेहतर होगा। कि जाने नमाज पढ़कर दो दुआ के लिए हाथ उठाए तो न जाने क्या सोचकर उन्होंने एक दुआ मांगी थी। वो कि उन्हें यकीन नहीं था कि ये दुआ कबूल होगी या नहीं, लेकिन रब तो करने से आए तो वो हो जाता है जिसके बारे में कोई गुमान न हो। बीजान को नमाज में मसरूफ देकर वो कमरे से उठकर बाहर आ गया। उसकी निगाहें किसी को तलाश कर रही थी। तभी नजर सामने इस कमरे पर पड़ी थी। इसकी जलती रोशनी बता रही थी कि वो वहीं पर है। वह दरवाजे पर आकर जम गया। नायाब ये बच्चों की कापियां चेक करने में मसरूफ थी। आहट पलट कर देखा और फिर एकदम ही रुख मोड़ लिया। लंबी सियाह चोटी पूंछ पर थी, बालों की छोटी छोटी लिट्टें अपने चेहरे पर झूल रही थी। उसने एकदम ही दुपट्टा उठाकर सर पर लिया था। वो खड़ी लब काट रही थी। उसकी खामोशी और बेनियादी पर तैमूर को गुस्सा आया था, जिसे वो मामूली लड़की समझ रहा था कि अंदर तो नखरा भी है। ये सोचकर वो हैरान था। आप प्लीज बीजान के पास जाकर बैठे। बारीक सुरीली आवाज उसके कान में आई थी। वो उसे अपने कमरे से निकलने का कह रही थी। तैमूर को एकदम गुस्सा आ गया था। उसकी एक झलक देखने उससे दोस्ती करने के लिए तरसी थी। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑफिस, हर जगह इसकी मर्दाना वजह से भरपूर पर्सनैलिटी के चर्चे रहते थे, और सामने खड़ी लड़की तो उसकी मनसूहा थी जो उस कमरे से बाहर जाने का कह रही थी। उसके सख्त लहजे पर वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया था और गौर से उसकी झिलमिलाती हुई पलकों को देखने लगा था। खूबसूरत सियाह आंखें जिन पर घनी दराज बन के बसेरा किए हुए थी। उसका चेहरा तैमूर पर शिद्दत निगाहों की वजह से तप रहा था। न जाने क्यों सामने खड़े शख्स को नजर उठा कर देख भी नहीं पा रही थी। उसके चेहरे पर एक अजियत रकम थी। जब ये शख्स इतना बड़ा फैसला कर चुका है तो यहाँ इसके पास क्यों खड़ा है? जब उससे नफरत में इतना आगे आ गया है कि वो कागजी रिश्ता जिसे कई सालों से बीजार की मर्जी से इस जिंदगी से जोड़ दिया गया था, आज वो उसे पाक करने वाला है, तो फिर यहाँ उसके सामने आने का मकसद? वो उससे सवाल जवाब नहीं कर सकती थी, इसीलिए खामोश खड़ी रही। जानती भी हो मैं कौन हूँ? तैमूर शाह, तुम्हारा मिजाजी खुदा हूँ। तो अभी हाथ बढ़ाकर तुमसे अपना हक वसूल कर लो। अपनी काली सियाह आंखें उस पर गाड़ते हुए वो भारी लहजे में कह रहा था, जबकि उसके उन अल्फाज पर नायाब गुस्से से खोलकर रह गई थी।
तभी उसने एक झटके से चेहरा उठाया और बस इतना ही कह सकी, जी नहीं, ऐसा कोई हक नहीं रखते हैं आप, और ना ही मैं आपकी धमकी से डरने वाली हूँ। बेहतर है कि आप अपने हाथ अपने काबू में रखिए। और जिस तरह तेज काटदार आवाज में बोली थी, तैमूर शाह एक पल को उसे देखता ही रह गया था। इससे पहले कि वो वहां से गुजरती, वो फौरन उसे बाजू से खींचकर अपने करीब कर गया था। वो नाजुक अंदाज लड़की आकर सीधा उसके सीने से टकराई थी। हड़बड़ाकर कहने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप? मगर वो बगैर उसकी कलाई छोड़े अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रख दिया था। कहने लगा, मैं तो तुम्हें तरस खाकर देखकर कह रहा था, मुझे लगा था कि शायद तुम्हारे रिश्ते को खत्म करना मेरी सबसे बड़ी गलती होगी, लेकिन तुम तो अपने मुंह में जबान भी रखती हो। इसकी गिरफ्त में झिलमिलाती हुई फौरन खुद को छुड़वा गई थी। अपनी नाजुक कलाई को उसके हाथ में छुड़वा कर उसे मसलने लगी, जहाँ पर सुर्ख उंगलियों के निशान नक्श हो चुके थे। कहने लगी कि आपको रिश्ता खत्म करना है तो कर दें, मुझे कोई परवाह नहीं है। जाएं जहाँ मैंने इतने गम देखे हैं, वहां पर ये भी देख लूंगी। कम अज कम बराए नाम शोर का टैग तो मेरे नाम से हट जाएगा। ये कहते ही वो तेजी से गुलाबी आंचल लहराती उसके सामने से गुजरकर किचन में जाकर खड़ी हो गई थी। उसका सांस रोकने की मानित चल रहा था। इतनी आसानी से तैमूर शाह ने उससे ये सब कह दिया था, जबकि कुछ देर पहले ही वो उसके तल्ख अल्फाज सुन चुकी थी। मैं नायाब फातिमा को तलाक देने आया हूँ, बीजान उस कागजी रिश्ते को खत्म करना चाहता हूँ। उसने तैमूर को रूबरू कभी नहीं देखा था, लेकिन वो उसकी जान में बसता था, बल्कि रूह में बसता था। जब से उसने होश संभाला था, तब से उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी लड़कियों से मुख्तलिफ पाई थी। उसके माँ बाप बचपन में फौत किया हुए, जिंदगी भर का रोग जैसे उसकी खुशियों पर फैलाकर बैठ गया हो। वो बहुत कम हंसती थी, कम बोलती थी, लेकिन उसने सिर्फ अपनी तालीम पर तवज्जो दी। यही वजह थी कि मैट्रिक तक उसने मुकम्मल से सुकून से तालीम हासिल की। उसके बाद प्राइवेट करीबी स्कूल में टीचिंग कर रही थी, लेकिन इसकी सारी थकन, सारी उदासी रिजान की बस एक बात पर हो जाती थी, तेरे मुस्तकबिल के बारे में तो मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं। नायाब, तेरा रिश्ता तो मैंने तैमूर के साथ ऐसा मजबूत बढ़ाया था कि कोई भी उसे नहीं तोड़ सकता। एक दिन वो आएगा, तुझे डोली में बिठाकर अपने साथ ले जाएगा, फिर मैं बेफिक्र होकर मरूंगी। कैसी बातें करती हैं आप बीजान, खुदा आपको मेरी उम्र भी लगा दे। वो फौरन ही उनका हाथ थाम लेती तो बीजान उसे प्यार से सीने से लगा लेती। चली, ये तो दुनिया का दस्तूर है कि बेटी को रुखसत करना ही पड़ता है। मैं तुझे बड़ी शान से तैमूर के साथ रुखसत कर दूंगी। तैमूर, तैमूर, वो तैमूर ऐसा है, तैमूर वैसा है। बस एक बचपन से लेकर जवानी तक उसने एक ही नाम सुना था कि वो तैमूर की मनसूआ है। एक दिन उसे तैमूर के साथ रुखसत होकर चले जाना है। वो बिन देखे ही उसे शदीद मोहब्बत करने लग गई थी। आज जब दरवाजा खोला तो सामने खड़े सफेद सलवार कमीज, ऊंचे लंबे कद वाले दो जवान को देखकर वो पलक झपकते नहीं पहचान गई थी। उसका दिल तो गोया धड़कना ही भूल गया था। अभी उसने दरवाजा खोला ही था जब पीछे से बीजान की आवाज आई थी, नायाब बेटी कौन है? वो इतना भी ना कह सकी कि दरवाजे पर कोई है जिसकी राह उसकी आंखें पिछले कई सालों से देख रही हैं। लेकिन वो कुछ कहे बिना बस नजर झुकाकर किचन में चली गई और अपनी खुशी से डगमगाते दिल को संभालने की कोशिश करने लगी। उसके दिल को जैसे पंख लग गए होंगे। समझ न आ रही थी कि आज घर में आए इससे इतने खास मेहमान के लिए वो क्या बनाए। तभी चाय की प्याली दिगलबाज मात के साथ सजाकर वो बीजान के दरवाजे के पास ले आई थी, लेकिन अंदर से आने वाली तैमूर की सर्द आवाज ने सिर्फ उसके जिस्म से जान ही नहीं, उसकी रूह भी खींच ली थी। और वो बिल्कुल साथ के दरवाजे के पास खड़ी रही, इतनी हिम्मत न कर सकी कि जाके ट्राली को अंदर ले जा सके। उसके कानों में बस वही अल्फाज गूंज रहे थे, मैं नायाब फातिमा को तलाक देने आया हूँ। बीजान, ये रिश्ता मेरे लिए एक बोझ है। उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी, दिल चाह रहा था कि दिहाड़े मारते रोए, लेकिन हमेशा की तरह वो अपने आंसू अंदर ही गिराने लगी। काश तैमूर ये अल्फाज कहने से पहले एक बार इसका हसीन मुखड़ा देख लेता तो उसे अपने लफ्ज़ों पर शर्मिंदगी महसूस होती, लेकिन अब देर हो गई थी। रोशन पेशानी वालों के नसीब अक्सर बहुत खराब होते हैं, और यही नायाब फातिमा के साथ हुआ था। उसने अपने ऊपर खामोशी की एक दबीज चादर ओढ़ ली थी, लेकिन अब ये शख्स उसके सामने खड़ा उसे इतने गौर से क्यों देख रहा है?
वो यही सोचकर हैरान थी, तभी उसे तेजी से जवाब देकर उसके सामने से गुजरकर किचन में चली गई। तैमूर हैरान रह गया था। उसका मतलब है ये लड़की भी इस रिश्ते से जान छुड़ाना चाह रही है। क्या ये किसी और को पसंद करती है? ये सोच ही उसे आग लगा रही थी। पूरी रात वो किसी अनदेखी तपिश में जलता रहा। सुबह सवेरे ही उसे वापस जाना था, तभी बीजान से मिलते हुए उसकी नज़र उस काले कपड़ों में बलबूस लड़की पर पड़ी, जो हीरे की तरह दमक रही थी। नज़र झुकाए वो दरवाजे के पास खड़ी थी। उसकी तरफ गलती से भी आंख उठाकर नहीं देखा था, और यही बात तैमूर से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो सोच रहा था कि इसके इतने बड़े फैसले पर यह खूब रोएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, मातम करेगी, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी खामोशी थी और चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। तभी वो बीजान से मिलते हुए उन्हें बुलंद आवाज में कहने लगा, रुखसती की तैयारी करें आप। मैं सिर्फ 1 महीने बाद नायाब को अपने साथ रुखसत करवा कर ले जाना चाहता हूँ। उसकी अनहोनी बात पर बीजान हैरत से आंखों पर हाथ का छज्जा बनाए उसे देखती रह गई। अरे क्या हो गया है लड़के तुझे? बावला हो गया है क्या? रात तो कुछ और कह रहा था और अब ये क्या कह रहा है? रात को जो कुछ कहा था वो सिर्फ एक मजाक था, लेकिन नायाब मेरी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को मैं जल्द अज जल्द अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूँ। इस पर अपनी गहरी नजर डालते हुए बीजान के आगे सर झुका गया था। उसने तो तैमूर को आंख उठाकर भी नहीं देखा था, जबकि उसका दिल हैरत से मचल कर रह गया था। ये कैसे हो सकता है? बीजान खुद भी इस मौके पर हैरान थी। दिल ही दिल में तशक्कुर के आंसू बहाती उनका चेहरा खुशी से खिल उठा था। फिर वो तैमूर के बाजू पर हाथ रखते हुए कहने लगी, तुम सच कह रहे हो मेरे बच्चे? कह दो कि मैं ख्वाब नहीं देख रही। मुझे यकीन था तुम मेरा मान तो नहीं तोड़ोगे। अभी बीजान की आंखों में खुशियों के आंसू झिलमिला रहे थे, तभी पैर लुढ़कते हुए नायाब उनके सामने आई थी। कोई ज़रूरत नहीं है बीजान आपको इस शख्स की मिन्नतें करने की। मैं बोझ हूँ क्या आप पर, या फिर लूली लंगड़ी हूँ जो आप इतनी मिन्नतें कर रही है? उनकी इस आंखों में शोलों की लपक थी। वो तैमूर उसकी दीदा दिलेरी और उसकी जरूरत पर अश अश कर उठा। सच में ही इस लड़की में कुछ तो है बहुत खास, जो उसे दूसरों से बहुत अलग कर रहा था। वो जेरे लब मुस्कुरा दिया था। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं नायाब से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। तैमूर ने मुस्कुराकर बीजान से इजाज़त मांगी तो नायाब सुलग उठी। वो पैर पटकती हुई फौरन अपने कमरे में चली गई थी। न जाने क्यों उस शख्स का सामना करने से वो इतनी घबरा रही थी। तैमूर ने जिस तरह उसे तलाक देने का फैसला करने के बाद उसे अपनाने का फैसला किया था, ये बात उसकी समझ से बाहर थी और उसे एक जिल्लत की तरह चुभ रही थी। अभी वो उसके पास आने वाला था और उसकी हथेलियां अभी पसीने से गीली हो रही थी। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, उसकी कानों की लुएं दहकने लगी। इतना गुस्सा, इतनी बेनियाजी जिसे मैं आम समझ रहा था, वो तो बहुत खास निकली। तैमूर का लहजा बहुत नर्म और हमवार था, आंखों में मिठास लिए वो नायाब की तरफ देख रहा था, जिसकी गहरी काली स्याह पलकें हमारे शर्म और हया के लग रही थी। मैं खास नहीं, बल्कि बहुत आम, और इस आम लड़की को अपनाने का फैसला बहुत समझ कर लीजिएगा, कहीं बाद में शर्मिंदगी ना हो आपको। इसके गुलाबी लब ऐसे हिल रहे थे जैसे फूल झड़ रहे हों। उसकी तल्ख बातें भी तैमूर को किसी सुहाने ख्वाब की मानित लग रही थी। वो अचानक ही 2 कदम आगे बढ़ा था और उसे इतने करीब देखकर नायाब की जान जैसे हथेली में आ गई थी। वो 2 कदम पीछे हटी और फिर कांपते हुए कहने लगी कि प्लीज आपको जो भी बात करनी है दूर रहकर करें। लेकिन वो उससे इतना कहने पर 2 कदम मजीद करीब आया था और अगले ही लम्हे अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर निछावर करके कहने लगा कि लड़की शोहर हूँ तुम्हारा, तुम कोई हक नहीं रखती मुझे खुद से दूर रखो। बाहर तुमने सुन लिया ही होगा, मैं तुम्हें रुखसत करके अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। मेरा बस चले तो अभी अभी तुम्हें अपने साथ रुखसत करके ले जाऊं, लेकिन तैमूर शाह की शादी है, धूमधाम से होगी और तमाम रीत और रिवाज के साथ मैं तुम्हें अपने साथ रुखसत करके ले जाऊंगा। सबको पता चलना चाहिए कि तैमूर शाह अपनी बीजान की पसंद को अपना चुका है। वो कुछ इस अंदाज में बोला था। एक पल को नायाब में उसका चेहरा देखने लगी, फिर अगले ही लम्हे उसके कान में वही अल्फाज गूंजने लगे थे जो उसने गुज़श्ता रोज सुने थे। फौरन उसका हाथ अपने कंधे से झटक कर कहने लगी, आपको ये रिश्ता ख़त्म करने आए थे, राइट? और यहाँ मुझे देखकर यकीनन बाकी लड़कों की तरह आप भी मेरे हुस्न पर फिदा हो गए हैं ना?
मेरा हुस्न देखकर आपका यही जी चाह रहा होगा कि आप मुझसे शादी कर लें, मेरे साथ कुछ वक्त गुजारें और फिर जब आप मुझे वहाँ शहर ले जाएंगे बेजान से दूर, तो जब आपका दिल भर गया आप मेरे सर पर सोतन ले आएंगे और फिर मैं किसी फजूल सामान की तरह आपके घर में पड़ी रहूंगी। यही चाहते हैं ना आप? उस लड़की का दिमागी कैफियत देखकर तैमूर एक पल को चुप सा हो गया था। वो बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही थी। एक गहरी सांस खारिज करके उसने नायाब को देखा। वो उसे अब कैसे बताता कि वो तो उसके बात करने के अंदाज को देखकर, उसकी आंखों में चुभे ख्वाब को देखकर उसका फिदा हुआ था। लेकिन बहरहाल वो भी तो नकार ये कहने लगा कि हाँ, तुमने जो समझना है समझो, लेकिन अब तुम मेरी मलकियत हो। वो फिर से कहने लगी, मैं आपकी गर खरीद गुलाम नहीं। लेकिन अगले ही पल उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करके कहने लगा कि जितनी ज्यादा बातें करोगी ना, उतनी ही कम होती जाएंगी। ये ना हो कि मैं मजबूर हो जाऊं अभी और इसी वक्त में अपने साथ शहर ले जाने के लिए। आज से 1 महीने बाद मैं यहाँ पर रुखसत करने के लिए आऊँगा। तुम मुझे दुल्हन के रूप में हंसती मुस्कुराती चाहिए, ये मेरा ऑर्डर है। और तुम मानोगी, नायाब के माथे पर बल पड़े थे। ये बात उसकी यहाँ पर कारी जरूरत थी। वो शख्स तो उसे तलाक देने वाला था, फिर अब इस तरह बातें क्यों कर रहा था? इससे पहले कि वो मजीद कुछ जहर उगलती, तैमूर ने फौरन उसके लबों को अपने दस्तरस में ले लिया। उसके लबों को अपनी शिदतों से हमकिनार करने लगा। नायाब का तो सांस जैसे सीने में लेटा कर रह गया। इससे सांस तक लेना दोबर हो चुका था। हड़बड़ाते हुए कहने लगी कि छोड़े छोड़े मुझे। वो उसे छोड़ चुका था। फिर कहने लगा कि अगर तुम्हें ये याद रहा हो तो दोबारा मेरे सामने बार बार इनकार करने से पहले 100 बार सोच कर ही करना। मुझे इनकार पसंद नहीं। वो उसे वहीं छोड़कर जा चुका था। बीजान से मिलकर गया था। बीजान तो खुश ही हो रही थी। जैसे ही तैमूर वहां से गया तो नायाब के हवास बहाल हुए थे। अभी भी बीजान खुशी से उसे सीने से लगाकर दुआएं दे रही थी कि मैंने कल ही नमाज पढ़ते हुए दुआ मांगी थी और देखो अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। लेकिन वो बीजान के एहसास से निकल कर उनका चेहरा देखने लगी, कहने लगी कि आप ये कैसे कर सकती हैं बीजान? वो शख्स मुझे तलाक देने के लिए आया था। इतने सालों से आपके कहने पर मैं उस शख्स की राह देख रही थी, लेकिन जब वो आया तो वो मुझे तलाक देना चाहता था। लेकिन फिर न जाने रातों रात दिल में क्या आ गया, क्या खिचड़ी पकी कि वो फौरन से मुझे अपने साथ रुखसत करने के लिए तैयार हो गया। मैं ऐसे शख्स के साथ हरगिज रुखसत नहीं होंगी। मुझे इससे खुलत चाहिए। वो शख्स मुझे लगता है किसी बदले के तहत आया है। और आप खुद ही तो कहती हैं कि फाइका बेगम तो मुझसे नफरत करती है। मोमानी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मेरी माँ से भी नफरत करती थी और मुझसे भी। मतलब वो मुझे कैसे अपना सकती हैं? मुझे तैमूर शाह से खुला चाहिए। बीजान का दिल टूटने लगा था। पहले वो पोते को मना रही थी और अब पोती का रवैया उनके लिए नाकाबिले यकीन था। रोते हुए कहने लगी कि बेटा ऐसा गलत मत सोचो, मुझे तैमूर पर पूरा यकीन है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। मेरी बूढ़ी जान पर रहम कर लो, मैं तब तक ही जिंदा हूँ जब तक तुम रुखसत नहीं हो जाती। बस इसके बाद मैं सुकून से मर पाऊंगी। अपनी बूढ़ी नानी के जुड़े हाथ देख लो। वो उनके घुटनों में बैठ चुकी थी। फौरन उनके दोनों हाथ पकड़कर कहने लगी, नहीं प्लीज आप ऐसा मत करें। क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही है? वो चुप हो चुकी थी, लेकिन बीजान को तसल्ली देने के बाद वो कमरे में चली गई। अभी भी उसका मौकफ यही था कि वो तैमूर शाह से खुला ले लेगी। तैमूर शाह क्या समझता है मैं उसकी कोई गर खरीद गुलाम हूँ? मैं हरगिज उसे रुखसती नहीं करूंगी। बीजान पहले तो थोड़ी मुतमिन हो चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था शादी की तैयारियों में नायाब को जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। वो जो भी बीजान उससे कहती वो हूँ हाँ कर देती और बस खामोश हो जाती। बीजान का दिल डूबने लगा था। अब उनका पोता वो तो मान चुका था, लेकिन नवासी उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। अगर वो तैमूर से मोहब्बत करती थी तो नायाब भी उसके जिगर का टुकड़ा थी। एक गहरी सांस खारिज करके वो भी खुद को इस बात पर आमादा करने लगी कि नायाब और तैमूर का रिश्ता वाकई में बेजोड़ है। कहीं वो जबरदस्ती दोनों को इस रिश्ते में बांध कर ना रख रही हूँ। और नायाब नायाब तो कितनी जिद्दी थी, भले भोली भाली थी। अपनी नानी का किसी भी हुक्म को टालती नहीं थी, लेकिन जब जिद पर आ जाती थी तो मरकर भी वो काम नहीं करती थी। रुखती को 10 दिन बाकी थे। घर जाकर तैमूर ने भी अपनी माँ को बता दिया था कि मैं नायाब से ही रुखती करना चाहता हूँ। फाइका बेगम ने तो आसमान सर पर उठा लिया। वहीं उसके वालिद भी गुस्से में आ चुके थे। कहने लगे,
कि हम यहाँ पर अमीर कबीर बिजनेसमैन खानदानों के साथ इस पर जोड़ना चाहते हैं, और तुम्हें कहा था कि उसको तलाक देकर आना, और तुम खुद भी उससे बात पर आमादा थे। लेकिन अब ये एकदम से बेजान नहीं। तुम्हें कौन से तावीज़ बोलकर पिला दिए जो तुम फौरन से उस लड़की को उस घर में लाने के लिए तैयार हो गए। बड़े जब्त के साथ वो गहरी सांस खारिज करके कहने लगा, कोई किसी ने मुझे कुछ तावीज़ नहीं पिलाए, बस वो मेरी बीवी है, इतने सालों से मेरे नाम पर बैठी हुई है, और मैं यूं उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। ये मेरे दस्तूर के खिलाफ है। उसके कहने पर न चाहते हुए भी घर वाले उसकी शादी की तैयारियां करने लगे। वो भी बैठा बारात का रूसी लिबास देख रहा था, अपने हाथों से उसे छूकर अपनी गोद में रखे हुए थे। तैमूर शाह यही सोचकर अपने अंदर से सरशारी महसूस कर रहा था कि जब नायाब ये सुर्ख रूसी जोड़ा पहनकर उसके सामने उसके पहले में मौजूद होगी, तो न जाने वो कैसे उसके हुस्न से सरशार हो रहा होगा। वो तो उस लड़की को वक्त गुजरने के साथ साथ मजीद ही मोहब्बत करने लगा था। उसे खुद भी अंदाजा नहीं हो सका था कि वो कभी किसी लड़की के साथ इस कदर अटैच हो सकता है। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था जब बीजान का नंबर स्क्रीन पर जगमगाया। उसने जल्दी से कॉल पिक की थी। बीजान ने हाल पूछने के बाद जो बात उससे की, तैमूर के चेहरे पर कई रंग आकर गुजरे थे। कहने लगा कि बीजान ये क्या कह रही हैं आप। बीजान गहरी सांस खारिज करके कहने लगी कि हाँ बेटा, मैं जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ। नायाब अब जिद पर आ चुकी है, वो तुमसे खुला चाहती है, और मुझे लगता है कि शायद जो तुम दोनों के लिए बेहतर होगा। हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम दोनों का बचपन में रिश्ता बांध दिया था। तुम ऐसा करो, उस लड़की को खुद आकर देख लो। मैं यहीं पर अच्छा रिश्ता देकर इसकी शादी करवा दूंगी। वो रो भी रही थी, जबकि तैमूर का पारा हाई हो चुका था। शायद ही उसे आज तक किसी पर इतना गुस्सा आया हो जितना इस वक्त उसे नायाब की इस हरकत पर आया था। बेजान की कॉल बंद करने के बाद उसने अपने कमरे में हर एक चीज़ को तहस नहस कर दिया था। सारे परफ्यूम की शीशियाँ जमीन पोंछ करके किची किची हो चुकी थी। गुस्से से उसने खुद को आईने में देखा और जोर से मुक्का आईने में मारा। उसे अपने आईने में कई अक्स नजर आ रहे थे, और आईने में वो खुद को देखकर सीधा खड़ा हुआ। बाहर तेज बिजली कड़कने की और बादल गरजने की आवाज आ रही थी। वो कहने लगा, नायाब, मैंने तुम्हें वक्त देकर बहुत बड़ी गलती की। मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें रुखसत करके अपने साथ लेकर आऊंगा। आज की ये रात तुम मेरे लिए बाहों में, मेरे पहलों में गुजारोगी। यहाँ गांव में भी मौसम काफी खराब हो चुका था। छत पर कपड़े सुखाने के लिए डाल रखे थे। जैसे ही हल्की तेज हवा चलने लगी, तो वह जल्दी से छत पर गई थी, कपड़ों को नीचे लेकर आई, मगर तब तक वो खुद भी भीग चुकी थी। उसके स्याह रंग का फ्रॉक उसकी वजह से चिपक चुका था, जिससे उसका वजूद काफी हद तक तैयार हो रहा था। वो कँपकँपाते नीचे आई थी। बीजान ने उसकी हालत देखी तो कहने लगी, जाओ जल्दी से नहाकर कपड़े चेंज करो, ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगी। सर्दियों का आगाज था, और ऐसे में होने वाली बारिश खून तक को जमा देने वाली थी। अपने कमरे में जाकर उसने जल्दी से अलमारी से कपड़े निकाले थे। चेंज करने के बाद वो बेड पर आकर बैठी। आज वक्त से पहले उसे नींद आ चुकी थी। बीजान ने उसे खाने के लिए कहा तो वो कहने लगी, आप खा लें बीजान, मुझे भूख नहीं। लेकिन वो फिर भी उसके लिए दूध का गिलास साइड टेबल पर रख कर जा चुकी थी। उसने दूध का गिलास फेंका और सो गई कि रात को कभी भूख लगी तो पी लूंगी। बाहर बादल जोरों शोर से गरज रहे थे। वो गहरी नींद में थी जब एकदम से खिड़की खुलने की आवाज आई। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। बाहर बारिश तेज तूफानी जा रही थी, और खिड़की खुल चुकी थी। वो घबराकर आसपास कमरे में देखने लगी। उस वक्त उसने एक शॉर्ट शर्ट और ट्राउजर पहन रखा था। शर्ट के सामने बटन भी खुले हुए थे। वो जल्दी से उठकर खिड़की की तरफ गई, और जैसे तैसे जोर लगाकर उसने खिड़की के पट को बंद किया था, मगर जैसे ही पलटी तो उसे एक झटका लगा था। साइड टेबल पर पड़ा हुआ दूध का गिलास बिल्कुल खाली था। ये देखकर वो हैरान हो गई। फौरन दूध के गिलास को उठाकर देखने लगी। उसे ठीक से याद था कि उसने एक घूंट तक दूध का नहीं पिया था। गिलास भरा हुआ था, फिर यह गिलास कैसे खाली हुआ था। ना ही दूध का एक कतरा फर्श पर गिरा था, ना ही साइड टेबल पर। वो अभी ये सोच ही रही थी जब बेड पर बैठकर जैसे ही दोबारा कंफर्टर में लिपटने लगी, तो इसकी चीख निकलते निकलते बची थी
क्योंकि बेड की दूसरी जानिब कोई लेटा हुआ था। वो कोई और नहीं बल्कि तैमूर शाह था। इससे पहले कि वो जोरदार चीख मारती, वो उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपना करीब करता उसके लबों पर अपना हाथ रख चुका था। दिल की धड़कन इस कदर तेज हो चुकी थी कि तैमूर अपने कानों तक उसका धड़कता हुआ दिल सुन चुका था। कहने लगा कि ये रात के इस पहर चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीजान की आंख खुल गई तो वो सहम जाएंगी। इस उम्र में उनके लिए यूं रात के पहर उठ जाना अच्छा नहीं होगा। वो हाँफते हुए खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़वाने लगी। आंखें खोलकर दोबारा देखा, कहीं वो कोई ख्वाब तो नहीं था। लेकिन यह हकीकत थी। हड़बड़ाकर कहने लगी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पर कब आए? मेरे कमरे में, मेरे बेड पर। वो कहने लगा कि ये मेरा कमरा है, ये बेड भी मेरा, और इस बेड पर मौजूद नायाब फातिमा भी मेरी है। तो क्या कह रही है? तुम बताओ मुझे। एकदम से उसका सारा जहन धुआं धुआं हुआ चुका था। उसे तो ये याद भी नहीं था कि उसे कहना क्या है, और उसके चेहरे के बेहद करीब था। वो कहने लगी कि छोड़े मुझे, मैं बीजान को बताऊंगी। ये क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ? मुझे आपके साथ कोई रिश्ता रखना ही नहीं है। तैमूर उसे मजीद खुद में भेजता अपनी एक टांग में उसके ऊपर रख चुका था। कहने लगा, हाँ तो क्या कह रही थी तुम? खुला चाहिए तुम्हें मुझसे? बोलो, खुला दूं? नायाब जब तक उसका चेहरा देखे जा रही थी, क्योंकि उसके हाथ की जसारतें अब बढ़ती जा रही थी। वह मजीद उसके करीब होता जा रहा था। पसीने की बूंदें नायाब के पूरे वजूद पर थमथमाने लगी। हालांकि मौसम काफी ठंडा था। उसकी ये घबराहट पूरी हालत देखकर तैमूर अंदर ही अंदर इत्मीनान महसूस कर रहा था। कहने लगा, मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त रुखसत करने के लिए आया हूँ। मजीद वक्त देना खतरे से खाली नहीं। आज रात तुम्हारी अकल ठिकाने लगा कर आऊंगा। नायाब एक बार फिर उसके मुंह पर इनकार करने लगी। कहने लगी कि मैं मर जाऊंगी लेकिन आपके साथ रुखसत नहीं होंगी। वो भी चिढ़कर कहने लगा, ठीक है, मर ही जाना, लेकिन रुखसती तुम्हारी होकर ही रहेगी। जब वो बार बार कसमसाते इनकार करने लगी, जिस तरह वो उसके करीब थी, तैमूर शाह के जज्बात मजीद काबू में रखना आसान नहीं था। वो उसकी गिरफ्त में कसमसाते हुए बार बार उसके दिल के तार छेड़ रही थी। जानता था जिस कदर ये लड़की जिद्दी है, ऐसे काबू में नहीं आएगी। अगले ही पल उसने उसके बालों से उसे जकड़ लिया और फिर अपने लब उसके लबों में पेवस्त कर दिए। बड़ी देर तक उसके लबों पर हावी रहा और फिर धीरे धीरे उसकी शर्ट के बाकी बटन उसने खोलना शुरू कर दिए। नायाब इन सब के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन जिस तरह तैमूर उसके वजूद पर हावी होता जा रहा था, कहाँ वो नाजुक अंदाज लड़की और कहाँ तैमूर, वो उसकी गिरफ्त में बिल्कुल ही कांपने लगी थी। फिर वो शिद्दत से उस पर हावी होता उस पर अपना हक वसूल करने लगा। उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था उसके साथ ऐसा भी करेगा। नायाब की आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन तैमूर ने उसकी आंखों में आए उन आंसुओं की बिल्कुल भी परवाह नहीं की थी। अपना हक वसूल करने के बाद उसे छोड़ा था। बेड की चादर रंगीन हो चुकी थी। एक नज़र उसने नायाब को देखा, जो अभी भी रोते हुए तैमूर को बुरा भला कह रही थी कि ये सब कुछ करना चाहते थे आप? क्यों किया आपने ऐसा? मैं जब आपसे खुला की डिमांड कर रही थी, आप होते कौन है मेरे साथ ये सब कुछ करने वाले? कुछ सोचकर तैमूर एक बार फिर उसे अपने बाहों में भर गया। फिर कहने लगा, लड़की, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। ये तो सिर्फ ट्रेलर था जो मैंने तुम्हें दिखाया। अब सुबह तुम उठोगी भी जान के साथ, कुछ इतलाकी से बोलोगी और उनको कहोगी कि तुम मेरे साथ दोस्ती करने के लिए तैयार हो। वो बस तुम्हारा बचपना था जो तुम बार बार खुला की डिमांड कर रही थी, ताकि बीजान मजीद तुम्हारी और मेरी वजह से परेशान ना हो। उम्र देखो उनकी, कितनी मतलबी हो तुम। मैंने जो किया वो किया, लेकिन अब तुम भी उन्हें तकलीफ देना चाहती हो। अगर अगली सुबह तुम अपनी डिमांड वापस ना ली और खुशी खुशी मेरे साथ रुखसत ना हुई, तो मैं बता रहा हूँ हर रात मैं यहाँ पर आऊँगा और तब तक तुम्हें नहीं बख्शूंगा जब तक तुम मेरे साथ मेरे बच्चों की माँ नहीं बन जाती। तैमूर की ये धमकी सुनकर वो चुप सी हो चुकी थी। तैमूर उसे वहीं पर छोड़कर जा चुका था। बीजान इस बात से ही अनजान थी कि उनका लाडला पोता रात को इस घर में भी आया था। अगली सुबह वो उठी, लेकिन अभी तक उनकी लाडली नवासी उठी नहीं थी। उन्होंने नाश्ता भी खुद तैयार किया।
اس के कमरे में आई। वो बेड पर आड़ी तिरछी लेटी हुई थी। उसके करीब आई, उसकी गर्दन और कानों से बाल हटाए। तभी उसकी गर्दन पर सूत निशान देखे कहने लगी, ओहो, लगता है लड़की ने रात को ठीक से खिड़की बंद नहीं की। देखो तो मच्छर आ गए हैं। कैसे पूरी गर्दन पर सूत निशान बना दिए। नींद में अपनी नानी की आवाज़ सुनकर वो हड़बड़ाकर जाग चुकी थी। पूरे वजूद में दर्द की टीसें उठ रही थी। तैमूर के लम्स ने सारी रात उसे तड़पाए रखा था। कहने लगी, बीजान आप उठ गई। बीजान उसके माथे पर हाथ लगाने लगी। उसे तेज बुखार हो रहा था। कहने लगी, खैर है तुम्हें तो तेज बुखार हो गया, मैं तुम्हारा नाश्ता कमरे में ही लेकर आती हूँ। वो चुप सी हो चुकी थी, पूरा बदन टूट रहा था। रात को तैमूर जाने से पहले ही उसे पेन किलर देकर जा चुका था। 2-3 दिन लगे उसे संभलने में, और ऐसे में वो अपने वजूद पर अभी भी यूं महसूस कर रही थी जैसे तैमूर अभी अभी उसे छूकर गया हो। उसे अपने वजूद से तैमूर की महक आने लगी थी। रुश्ती का दिन आ गया था। उसने वही जोड़ा जेब तन रखा था जो बड़े प्यार से तैमूर ने उसके लिए लिया था। उसके चेहरे पर तैमूर की मोहब्बत एक अलग तरह की रौनक बखेर रही थी। बड़े धूमधाम से तैमूर बारात लेकर आया था। फाइका बेगम के माथे के बल सीधे नहीं हुए थे। ना ही उन्होंने किसी से सलाम दुआ की, न बीजान न नायाब से बात करने की कोशिश की। लेकिन जब रुश्ती का वक्त आया तो तैमूर ने बीजान का भी हाथ थाम लिया था। कहने लगा, बीजान आप हमारे साथ हमारे घर चलें। मैं आपको यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता। जब तक आपकी नवासी साथ थी वो अलग बात थी। बीजान कभी उसका तो कभी फाइका बेगम का चेहरा देखती कहने लगी कि नहीं, ऐसा नहीं, तुम्हारी माँ को और शायद तुम्हारे बाप को ये अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वो कहने लगा कि नहीं, जब मैं कह रहा हूँ तो फिर किसी को अच्छा लगे ना लगे मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। नायाब भी इत्मीनान में आ चुकी थी। फौरन अपनी बीजान के गले लग गई। कहने लगी, आप भी मेरे साथ चलें, वरना मैंने जाना ही नहीं। तैमूर ने तो बस उसे घूर कर देखता ही रह गया था। यूं बीजान को अपने साथ लेकर शहर आ चुके थे। बड़ी खूबसूरती के साथ तैमूर का कमरा सजाया गया था। उस कमरे में बैठी हुई थी, उसके पेट में गिरें पड़ रही थी। न जाने आज पूरी रात वो उसके साथ क्या करता। उस रात का ही लम्स वो अभी तक भूल नहीं पाई थी। इससे गुस्सा भी था। जैसे ही तैमूर कमरे में आया, उसके सामने आकर बैठा, वो फौरन सिमट कर पीछे हुई थी। कहने लगी, ये मत समझिएगा, मैं आपसे डरकर आपके साथ रुखसत हुई। मुझे बस मेरी भी जान की सेहत का ख्याल था, वरना मैं आपसे ये रिश्ता खत्म करके ही रहती। तैमूर दांत कचकचाकर कहने लगा, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। खैर, जितना दूर भागोगी उतनी ही मेरी सिद्दें सहोगी। मैंने तो सोचा था आज रात तुम्हें छुट्टी दे दूंगा, तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, लेकिन शायद तुम चाहती हो मैं तुम्हें एक रात भी सुकून से ना सोने दूं। ये कहकर उस पर हावी होने लगा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आए थे। तैमूर फौरन उसे अलग हुआ। फौरन से संजीदा होकर उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरकर कहने लगा, बस कर दो यार, बीवी हो तुम मेरी, ऐसा मत किया करो। जब मैं अपनी गलती भूल भाल कर आगे बढ़ रहा हूँ, चलो तुमसे सॉरी भी करता हूँ। मैंने गलत कहा, जज्बाती होकर तुम भी मुझे माफ कर दो। और चलो, मैंने भी तुम्हें 100 बार माफ किया। अब हम अपनी जिंदगी के लिए शुरुआत करते हैं। इसके इतने प्यार भरे अंदाज पर वो भी चुप सी हो चुकी थी। कहने लगी, नहीं, जब तक मेरी आपके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाने वाली। तैमूर भी मान चुका था। कुछ टाइम बाद दोनों ही एक दूसरे को समझने लगे थे। फाइका बेगम को भी उसे अपनी बहू तस्लीम करने में वक्त लगा था, लेकिन अपने बेटे की पसंद देखकर उन्हें भी इस बहरहाल कबूल करना पड़ा। तैमूर की मोहब्बत देखकर नायाब को हथियार डालने ही पड़े थे, और फिर दोनों हंसी हंसी अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने लगे थे।